राधा रमन लाल जी का आपने दर्शन किया। उल्टे हाथ की तरफ एक पेड़ है जिस जगह को हम डोल कहते हैं। निमाई पाठशाला में एक प्रस्तुति भी हुई थी डोल के नाम से, आप देखिएगा। वो जगह वो है जहां पर रासलीला के बीच में जब श्री श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के चले गए, दो प्रकार के वर्ग थे, चंद्रावली जी का वर्ग और प्रिया जी का वर्ग। एक को मान हुआ, एक को मद हुआ। सौभग मदम, दो चीजें हुई। अभी इतने विस्तार हम घुसते जा रहे हैं, फिर हमें लग रहा है कि बाहर कैसे निकलेंगे। तब श्री किशोरी जी को लेकर के श्री ठाकुर जी पधारे। गोपियां ढूंढ रही हैं, कहां है ठाकुर जी, कहां है ठाकुर जी। और फिर किशोरी जी को ठाकुर जी ने विराजमान करके उनके केश में बेणी श्रृंगार किया। केशव प्रसादिनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री किशोरी जी ने का ठाकुर जी ने वेणु श्रृंगार किया। करते करते किशोरी जी ठाकुर जी के स्पर्श से और वेणी श्रृंगार से ऐसे आनंद में डूब गईं कि उसका सुख लेते लेते याद ही नहीं रही और चुपचाप ठाकुर जी पीछे से जाके छुप गए। महाराज थोड़ी देर में याद आई, तब किशोरी जी ने बड़े प्रेम से ये श्लोक कहा जो हमने आपसे बुलवाया। भागवत जी के इसी श्लोक से वृंदावन के सारे मंदिर प्रकट हुए। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि। ये सब प्रकट हुए और यहीं पर बैठ करके किशोरी जी ने रोते रोते कृष्ण को पुकारा और श्री व्रजवासी व्रजगोपियों ने जाकर के उनकी शरणागति ली और कहा, किशोरी जी आप ही बताओ कृष्ण कहां है। यहीं पर बोला, ओ सुन राधिका दुलारी, यहीं बोला। फिर उसके बाद किशोरी जी और सब जमुना जी के घाट पर गए और दिव्य वंशी वट पर दर्शन हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज दक्षिण से वृंदावन पधारे। हम सुनते हैं कपड़ा दिया था कि श्रृंगार दिया था इसलिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये ऊपरी ऊपरी बात है, ये भी अच्छी बात है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज पधारे, रूप सनातन जी से मिले, स्थान ढूंढा कि कहां बैठ करके हम भजन करें। तब अनुभव हुआ कि जहां पर ठाकुर जी और किशोरी जी अंतरंग रूप से मिले हैं और श्री किशोरी जी का बेणी श्रृंगार श्री ठाकुर जी ने किया है, हम उसी स्थान पर बैठकर भजन करें। जब उस स्थान का भजन करने का चुनाव किया, इन उज्जवल नीलमणि देयर इज अ मूड, स्वसंवित दशा। When Kishori ji is feeling a particular pleasure in meeting with Krishna or even the pain in separation, what is Manjari Bhav? None of the gopi, none of the Manjari would like to serve Krishna directly because there is a less pleasure in that. When you try to drink the ocean water directly, it's going to be too salty. But if it's going to come through clouds, it will become a rain and very sweet, drinkable. Similarly, Krishna is the ocean of ecstasy. You will find some salt of Aishwarya in that. It has to come through a cloud, and that cloud, the white cloud, is our Gaurangi Kishori Maharaj. So when Kishori ji touches the hand of Sri Krishna, the pleasure which she feels, she thinks, oh, Krishna is attracted towards me because of the help of these Ashtasakhis. So what should I give to her? What should I give to them? What should I give to them? So the pleasure which she feels, she multiplies it 200 times. This is not a worldly experience. So 100 times more than that, all the Ashtasakhis experiences it. Now Ashtasakhis think that we have able to
get this pleasure because of the help of these manjaris. So then they further multiplies it to 1000 times and give it to the manjaris. That's why we Gaudiyas consider as the manjari bhav, because that's the supreme most pleasure is there, which is just like a cow has given a milk, a cowhead boy has given to your home, and then now your mother or your wife make it even more pakka, put some saffron in that, there's a little more, I would say, almonds are there, and then Manish ji is going to enjoy and look bright here. That's how it is. That's how it is. So Gunamanjari, Anangamanjari Sri Gopal Bhatta Goswami, when he has taken the shelter of that tree where Sri Krishna personally, intimately met with Sri Radhika during the Ras Leela, during the pastime of Ras Leela, and suddenly he disappeared, she felt the deep pain and called him by Hanath Ramana Prishtha. When Gunamanjari Goswami sat at the same place, by the krupa of Sri Radharani, when they can feel the pleasure of meeting in multiple times, they can also feel the pain of separation in multiple times. The Gunamanjari Goswami, Gopal Bhatta Goswami, felt the deep, deep pain of that same separation which Sri Radhika Rani has felt during Ras Leela when Krishna is separated. And that deeper pain, वो गहरा विरह इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि जब राधा रानी ने गोपी गीत को सब गोपियों के संग गाया तो घूंघट पलट के कृष्ण प्रकट हो गए। पर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय से आंसू गिरे तो शालिग्राम फोड़ के राधा रमण प्रकट हो। ये केवल कोई कपड़ा श्रृंगार नहीं है, ये तो लोगों को बताने की बात है, ये तो ऊपरी बात है कि दुपट्टा पहनानो तो हाथ लाए थे या ते नारो ठाकुर जी, ये तो गहरी बात है। ऐसे राधा रमण लाल को हम प्रणाम करें। श्री राधा रमण लाल। तो हम चाहेंगे